درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آنے والے ہفتے میں مزید بارشوں کا امکان ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں شہزیب شہزاد سے۔ جی شہزاد۔ جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا بھی درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 2 روز قبل ہونے والی بارشوں کے بعد درجہ حرارت میں واضح کمی ہوئی ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 88% کے قریب بتایا جا رہا ہے، جبکہ ہوا کی رفتار 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آنے والے 2 سے 3 روز تک سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا، جبکہ آنے والے ہفتے کے اختتام پر پھر سے یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر سے جو ہے وہ امکان ہے کہ درجہ حرارت میں مزید کمی ہو سکتی ہے۔ آپ کو بتائیں شدید بڑھتی مہنگائی نے عوام کو روزمرہ اشیاء مہنگے داموں خریدنے پر مجبور کر دیا۔ برائلر گوشت کے دام عدم استحکام کا شکار۔ مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 11 روپے سستا، فی کلو قیمت 584 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 262 روپے مقرر کر دی گئی۔ شدید بڑھتی مہنگائی نے عوام کو روزمرہ اشیاء مہنگے داموں خریدنے پر مجبور کر دیا۔ برائلر گوشت کے دام عدم استحکام کا شکار۔ مارکیٹ میں مرغی کا گوشت 11 روپے سستا، فی کلو قیمت 584 روپے ہو گئی۔ فارمی انڈے 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 262 روپے مقرر کر دی گئی۔ آپ کو بتا رہے ہیں شدید بڑھتی مہنگائی نے عوام کو روزمرہ اشیاء خریدنا بھی مشکل کر دیا۔ FBR قوانین کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج۔ لاہور چیمبر اور تاجر تنظیموں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال کی حمایت۔ پاکستان ٹرانسپورٹ کونسل نے بھی ٹرانسپورٹ پہیہ جام رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبدالقادر۔ FBR کے قوانین کے خلاف تاجر برادری کی ہفتے کے روز شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال۔ لاہور چیمبر کا بھی تاجروں کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال پر چیمبر سروسز معطل رکھنے کا اعلان۔ صدر مال روڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشن سہیل محمود بٹ نے کہا کہ ہفتے کو ہم بھی کاروبار نہیں کریں گے۔ صدر انجمن تاجران میاں بکار نے کہا کہ بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ ہفتے کو بند رہے گی۔ پاکستان اسٹیل ٹریڈرز ایسوسی ایشن لوہا مارکیٹ بادامی باغ نے بھی ہڑتال کی حمایت کر دی۔ وائس چیئرمین ایسوسی ایشن باؤ محمد بشیر نے کہا ہفتے کو فیروز پور روڈ انڈسٹریز میں کام اور کاروبار بند رہے گا۔ صدر تاجران اکبری منڈی اظہر اقبال، صدر ٹیکسٹائل ٹریڈرز رانا ندیم عباس کا ہڑتال کی حمایت کا اعلان۔ صدر پاکستان ٹرانسپورٹ کونسل تنویر جٹ نے بھی تاجروں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے آج پہیہ جام ہڑتال کی کال دی ہے، جبکہ دوسری طرف شہر میں ریٹیل مارکیٹس کھلی رہیں گی۔ آپ کو بتائیں پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے بھارت کے لیے فضائی حدود کی بندش میں مزید 1 ماہ تک توسیع کا نوٹم جاری کر دیا۔ بھارتی ایئر لائنز کے لیے 23 اگست تک پاکستان کی فضائی حدود بند رہے گی۔ نوٹم کے مطابق بھارتی رجسٹرڈ طیاروں سمیت بھارتی ایئر لائنز کے زیر استعمال تمام طیارے پاکستانی فضائی حدود استعمال نہیں کر سکیں گے۔ بھارتی ملکیت یا لیز پر لیے گئے فوجی اور سول طیاروں پر بھی پابندی برقرار رہے گی۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران پاکستان نے اپنی فضائی حدود بھارتی ایئر لائنز کے لیے بند کی تھی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے شادرہ ہسپتال میں 8 ڈاکٹرز کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ سینئر رجسٹرار اینٹی ڈاکٹر سید محمد وقاص شادرہ ہسپتال میں تعینات، ڈاکٹر علی صہیب، ڈاکٹر راحیلہ بھی شادرہ ہسپتال منتقل۔ ڈاکٹر وقاص، ڈاکٹر سمیہ بھی نئی ذمہ داریاں سنبھالیں گی۔ میڈیسن کی ماہر ڈاکٹر ہنا ضمیر شادرہ ٹیچنگ ہسپتال ٹیم کا حصہ بن گئی۔ محکمہ ہیلتھ کیئر نے تقرر و تبادلے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ پنجاب اور بنگلہ دیش میں زراعت اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں وسیع تعاون کی گنجائش ہے۔ بنگلہ دیشی سرمایہ کاروں کو 1 ونڈو بزنس سینٹر کے ذریعے ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر اقبال حسین خان کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعاون، باہمی تجارت، صنعت اور زراعت میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی جڑیں مشترکہ تاریخ اور ثقافت میں پیوست ہیں۔ پنجاب بنگلہ دیش کی گارمنٹس اور مائکرو فائنانس میں کامیابیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مزید کہا کہ پنجاب اور بنگلہ دیش کے مابین زراعت اور فوڈ سیکیورٹی میں وسیع تعاون کی گنجائش ہے۔ پنجاب جنوری 2025 میں بنگلہ دیش کو 50,000 ٹن اعلیٰ
मायार का चावल बरामद कर चुका। बांग्लादेश की जानिब से वीजा क्लियरेंस में आसानी बाहमी एतमाद की निशानी है। बांग्लादेशी सरमायाकारों को वन विंडो बिजनेस सेंटर से हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। मुलाकात के दौरान बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला मरियम नवाज के पंजाब में जारी अवामी फलाही इक़दामात और तरक्याती कामों को बहुत सराहा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, पंजाब असम्बली में वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शजाउर रहमान का कहना है हुकूमत सैलाब के नुकसानात का अजाला करेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी ने इसका एतराफ़ कर लिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली में नुक्ता एतराज़ का जवाब देते हुए वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर मुश्तबा शजाउर रहमान का कहना था कि जिन अजला में तबाही हुई है निशानदेही की जाए, हुकूमत नुकसान का अजाला करेगी। मरियम नवाज जल्द जांबाक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान करेंगी। वज़ीर कानून शुहेब बर्त का कहना था कि हुकूमत ने फौरी तौर पर इक़दामात करके चकवाल में लोगों को रेस्क्यू किया। गवर्नमेंट जो है वो साथ साथ उसका तखमीना जो हमारे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है मुख्तलिफ अजला में, वो साथ साथ उसका तखमीना लगा भी रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा भी इस पे हैंड्स ऑन पूरी तरह हैं और वो सारी चीज़ों को देख रही हैं और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी कि लोगों को कंपनसेट किया जाए। हुकूमती रुकन एहसन रजा ने मतवलियों को करप्शन का जिम्मेदार करार देते हुए कहा महकमा औकाफ में करप्शन हो रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने महकमा औकाफ और मजहबी अमूर में करप्शन का एतराफ़ कर लिया। कहा कि किस महकमे में करप्शन नहीं है, लेकिन हम निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मलिक वहीद ने ऐवान में जवाब देते हुए कहा कि महकमा औकाफ ने साल 2025-26 के ADP में मसाजिद और मज़ारात की तमीर और तरक्की के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। जब औकाफ का ये महकमा नहीं था, हमारे वहाँ पे जो तंजीमें बनी हुई थी, जो मतवल्ली बैठते थे, जो देखभाल करते थे दरबारों की और सारा वहाँ पे जो भी ज़मीन उनके लुक आफ्टर करते थे, अगर मुखय्यर हजरात से ही इन्होंने पैसे लेके इनकी देखभाल करनी है इन दरबारों की, तो साल बाद अरबों रुपए का जो बजट होता है क्या फिर इनकी जेबों में जाता है? मुझे आप ये बता दें कि छोटी सी मस्जिद जो महकमे की तवील में नहीं भी होगी तो मुखय्यर हजरात खत्म नहीं हो सकते। मुखय्यर हजरात पता नहीं वे किन को समझ गए हैं। बात तो ये है किस महकमे में करप्शन नहीं है, इसको अच्छे अंदाज में इस निज़ाम को अच्छे तरीके से हैंडल करने के लिए चेंजेस की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब असम्बली में मसवदा कानून तरमीम ज़रई इनकम टैक्स पंजाब 2025, मसवदा कानून हार्टिकल्चर अथॉरिटी पंजाब और मसवदा कानून सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर पंजाब 2025 पेश कर दिए गए। एजेंडा मुकम्मल होने पर ज़हीर इकबाल ने पंजाब असम्बली का इजलास मंगल दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी। मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मामला स्पीकर के बैरून मुल्क से वापसी से मशरूत कर दिया गया। तफसीलात के लिए देखते हैं हसन रजा की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली में अपोजिशन और हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाबी की अंदरूनी कहानी। अपोजिशन और हुकूमती मुज़ाकरात कामयाब होने की सिफारिशात स्पीकर को पेश कर दी गयी। अपोजिशन और हुकूमती कमेटी का मुज़ाकरात कामयाबी के निकात खुफिया रखने पर इत्तेफाक हुआ। हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने जिन निकात पर इत्तेफाक किया, इसमें मुअत्तल अरकान की बहाली शामिल है। चेयरमैनों के ओहदे भी वापिस करना होंगे। अपोजिशन ने मुअत्तल अरकान की बहाली तक पंजाब असम्बली इजलास में न जाने का ऐलान किया था। पंजाब असम्बली का इजलास अपोजिशन के बगैर हुआ। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली के गेट पर एहतजाजन अपनी असम्बली लगा ली। स्पीकर के बैरून मुल्क निजी दौरे पर होने की वजह से अपोजिशन मुअत्तल अरकान का फैसला न हो सका। अपोजिशन अरकान की मुअत्तली का मामला आइंदा हफ्ते हल होने का इम्कान है। यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। आपको बताएं, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और महकमा जेल खानाजात में तकर्रुर तबादले कर दिए गए। मिर्जा वलीद बेग डिप्टी कमिश्नर हाउसिंग पंजाब तैनात, जबकि वजाहत अली खान को सुप्रिटेंडेंट सब जेल पिंडी भटिया लगा दिया गया। महकमा SNGDA के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक नूरुल कुरैशी को डिप्टी कमिश्नर गुजरात तैनात कर दिया गया। आसिफ रजा को डिप्टी कमिश्नर पाक पतन लगा दिया। सैयद असद अब्बास शराजी को सेक्रेटरी DRT रावलपिंडी तैनात किया गया है। दूसरी तरफ वजाहत अली खान सुप्रिटेंडेंट सब जेल पिंडी भटिया तैनात, मोहम्मद जुबैर को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट एग्जीक्यूटिव सब जेल पिंडी भटिया लगा दिया गया। अताउर रहमान डिप्टी सुप्रिटेंडेंट फैमिली रूम सेंट्रल जेल फैसलाबाद तैनात, जबकि अदील अकरम चीमा को डिप्टी सुप्रिटेंडेंट डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट जेल हाफिजाबाद का इजाफी चार्ज सौंपा गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुहर्रमुल हराम में महकमा दाखिला और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कारकर्दगी मुतासिर कुन रही। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से गवर्नर हाउस में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब अहमद जावेद काजी ने मुलाकात की।
इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा, मजहबी फिरका वारियत फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। पाकिस्तान में बसने वाले हर मसलक के अफराद को अपनी मजहबी रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी है। गवर्नर पंजाब ने बारिशों के दौरान होने वाले जानी और माली नुकसानात पर दुख और अफसोस का भी इजहार किया। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे सूबे के अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। बात करें मॉनसून की तो लाहौर में बारिशें कहर बरसाने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में छतें, दीवारें गिरने और करंट लगने से 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी। रेलवे रोड पर 2 मंजिला घर की छत मुनहदम होने से बाप बेटी की जानें चली गई। में बारिश शहरियों के लिए जहमत का बाइस बनने लगी। बारिश के बाइस हादसात में मजीद 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। रेलवे रोड पर रेलवे क्वार्टर्स में 2 मंजिला घर की छत गिरने का वाकया। घर की छत TR गार्डर से बनी हुई थी जो बोसीदा होने के बाइस गिर गई। छत के मलबे तले दबकर 45 साल अल्ताफ हुसैन और उसकी 4 साल बेटी नूर फातिमा जाँ बहक हो गई। मुल्तान रोड के इलाके में भी मकान की TR गार्डर की छत मुनहदिम। छत गिरने से जख्मी 3 अफराद को जिन्ना अस्पताल मुंतकिल किया गया। जिन्ना अस्पताल में जख्मी खातून दम तोड़ गई जबकि 2 बच्चे जेरे इलाज हैं। उधर शाहदरा के इलाके लतीफ चौक कश्मीर पार्क में नौजवान करंट लगने से जाँ बहक। 17 साल मुनीब वल्द आमिर को खंबे से करंट लगा और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मुनीब की नाश को गवर्नमेंट अस्पताल शाहदरा मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने शहरियों को बारिशों के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करने और बिजली की तनसीबात से दूर रहने की ताकीद की है ताकि मजीद नुकसानात से बचा जा सके। आपको बताएं, लाहौर में दिन भर बादलों ने अपना तसल्लुत कायम रखा। दिन के बेशतर औकात में आराम के साथ गाहे बगाहे बारिश की सूरत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। चंद एक इलाकों में तो काफ़ी खुलकर बरसे। लाहौर से सुहेल कैसर की रिपोर्ट देखते हैं। मानसून बारिशों की जारी तीसरे स्पेल के अख्तिताम पर लाहौर में बादल तमाम दिन कभी मटर गश्त तो कभी बारिश की सूरत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। दोपहर के औकात में तो इनमें मालूम नहीं कि क्या जोश पैदा हुआ कि चंद एक इलाकों में तो अच्छी खासी बारिश बरस गई। चौक नाखुदा में तो 111 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 45 और मुगलपुरा में 55 मिलीमीटर बारिश बरसी। मुतअद्दिद दीगर इलाका आया गया है कि आइंदा 1-2 रोज तक मौसम की यही सूरत हाल बरकरार रहेगी। अलबत्ता 20 और 21 जुलाई की दरमियानी शब से एक नया सिस्टम मुतहरिक होने के काफी मजबूत इम्कानात हैं। बताया गया है कि नया निज़ाम भी अच्छी बारिशें बरसाने का बायस बन सकता है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक बारिशों के मुतवक्को नए स्पेल के बायस मुल्क के मशरकी दरियाओं में पानी के बहाव में मजीद इजाफा हो सकता है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की PDM में हेडक्वार्टर्स आमद। वज़ीर आला को पंजाब में बारिशों और सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों में माउनत पर पाक आर्मी का शुक्रिया अदा किया। हसन रजा की रिपोर्ट देखते हैं। कंट्रोल रूम के दौरे के दौरान फ्लड फोरकास्ट डिवीजन, इंटरनेशनल वेदर पोर्टल, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर ब्रीफिंग दी गई। DG पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इरफान अली काठिया ने ब्रीफिंग में बताया कि बारिशों और सैलाबी रेलों के दौरान 1063 अफराद को बचाया गया। जेहलम और चकवाल में बरसाती पानी में फंसे अफराद को 23 मिनट में रेस्क्यू किया गया। इत्तला मिलते ही NDMA से राबिता करके आर्मी हेलीकॉप्टर तलब किया गया। मुतासिरीन को औसतन 15 मिनट में महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मानसून के दौरान पंजाब में 108 कीमती जानों का ज़िया हुआ। DG PDMA ने बताया कि दीवारें छतें गिरने से 80 लोग जान से गए। करंट लगने से 10, आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हुए। नहरों वगैरह में बेहतियाती से नहाने पर 13 लोग डूब गए। PDMA हेडक्वार्टर्स के दौरे पर खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना था कि हालिया दिनों में रिकॉर्ड बारिशें हुई हैं। PDMA डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को शाबाश देना चाहती हूँ। रेस्क्यू पुलिस और तमाम इदारों ने बेहतरीन काम किया। बारिशों का नया स्पेल 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। मैं PDMA को भी शाबाश देना चाहती हूँ। मैं अपनी तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को भी मैं शाबाश देना चाहती हूँ। एंड जो हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिलके, और जहाँ पर हमें फौज की ज़रूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने DG PDMA इरफान अली काठिया और टीम की कारकर्दगी को सराहा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं, DC लाहौर ने मॉनसून की बारिशों के बायस खुदाई पर पाबंदी आयद कर दी। डिप्टी कमिश्नर ने शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र वासा के लिए नई हिदायत जारी कर दी। मॉनसून में तरक्याती कामों के बायस हादसात का खदशा। डिप्टी कमिश्नर ने वासा के मजीद किसी प्रोजेक्ट के लिए गहरी खुदाई न करने की हिदायत कर दी। DC लाहौर का कहना है कि इंतहाई ज़रूरी मनसूबों के लिए 2 फुट से ज़्यादा खुदाई नहीं की जाएगी। जारी प्रोजेक्ट्स पर 3 दर्जाती हिफाजती इंतजामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तामीराती साइट पर प्रोजेक्ट के काम पर इर्द गिर्द रुकावटें लगाई जाएंगी। ज़्यादा खतरनाक मुकाम पर अमला तैनात किया जाएगा।
मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। दरियाओं और आबी ज़खायर में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने लगा। 24 घंटे के दौरान पानी की औसत बहाव में तेजी है। फहद अमीन की रिपोर्ट देखते हैं। दरिया में पानी है, बस्ती बस्ती पानी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मानसून की बारिशों के बायस दरियाओं और डैम्स में पानी की सतह बुलंद होने लगी। तरबेला के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 2,70,800 क्यूसिक तक पहुंच गई, जबकि इखराज 2,70,400 क्यूसिक है। मंगला के मुकाम पर दरिया जेहलम में पानी की आमद 44,700 क्यूसिक और इखराज 8,400 क्यूसिक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 2,49,200 क्यूसिक और इखराज 2,30,800 क्यूसिक है। हेड बराला के मुकाम पर दरिया चनाब में पानी की आमद 56,000 क्यूसिक और इखराज 32,100 क्यूसिक के मुकाम पर दरिया काबुल में पानी की आमद 37,600 क्यूसिक और इखराज भी 37,600 क्यूसिक है। तरबेला रेजरवायर में पानी का जखीरा 46,03,000 एकड़ फुट है। मंगला रेजरवायर में पानी की सतह 1,188 फुट और पानी का जखीरा 35,39,000 एकड़ फुट है। चश्मा रेजरवायर में पानी की सतह 647.80 फुट और पानी का जखीरा 2,49,000 एकड़ फिट है। तरबेला, मंगला और चश्मा रेजरवायर में काबिल इस्तेमाल पानी का मजमूई जखीरा 83,91,000 एकड़ फुट है। तर्जुमान वापडा के मुताबिक तरबेला और चश्मा के मुकाम पर दरिया सिंध, नौशहरा के मुकाम पर दरिया काबुल और मंगला के मुकाम पर दरिया जेहलम में पानी की आमद और अखराज 24 घंटे के औसत बहाव की सूरत में है। फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब का हवाई सफ़र को महफूज बनाने का मिशन। लाहौर एयरपोर्ट के करीब नो बर्ड जोन कायम कर दिया गया। एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में नो बर्ड जोन करार दिया गया है। शुरू कर दी गई है। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। जोन कायम करने का मकसद फजाई हादसा से बचाव है। जिला इंतजामिया, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स ने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि नो बर्ड जोन के कयाम से शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा रही है। जिला इंतजामिया कावानीन पर बिला तफरीक अमलदारी जारी रखेगी। फजाई हादसात की रोकथाम जरूरी। लाहौर मशरकी बाईपास, मनावा हस्पताल, PKLI, चुंगी अमर सिद्धू, इचरा और चाह मीरा नो बर्ड जोन में शामिल हैं। गैर कानूनी मुज़ब्बा खानों की फौरी बंदिश का हुक्म दिया गया है। चमड़े के कारोबार पर माहौलियाती कवानीन नाफिज, परिंदों को दाना डालने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। DC लाहौर सैयद मूसा रजा ने भी शहरियों से मुकम्मल ताउन की अपील की है। लाहौर के बासियों के लिए एक और जदीद मास ट्रांजिट मंसूबा। पंजाब हुकूमत का सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला मॉडर्न ट्रैकलेस और माहौल दोस्त मंसूबा होगा। रिपोर्ट देखते हैं ज़ैनुल आबदीन की। वज़ीर आला मरियम नवाज का माहौल दोस्त विजन, शहरियों को सफरी सहूलियात फराहम करने का एक और जदीद मंसूबा। पंजाब हुकूमत ने सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम की मंजूरी दे दी। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक ट्रेन केनाल रोड पर ठोकर न्याज बेग से जलो तक चलाई जाएगी। मंसूबे की सबसे अहम बात यह है कि इसे चलाने के लिए कोई नई लेन दरकार होगी, न दरख्तों की कटाई की जाएगी। ये ग्रीन एनर्जी पर मबनी बिजली से चलने वाला माहौल दोस्त मास ट्रांजिट मंसूबा होगा। ट्रेन के पुर्जे चीन से कराची पहुँच चुके हैं, जहाँ से उन्हें लाहौर पहुंचाया जाएगा। ट्रेन को लाहौर में अली टाउन ऑरेंज लेन के स्टेबलिंग यार्ड में असम्बल किया जाएगा। 32 मीटर लंबी ये जदीद ट्रेन एक वक्त में 300 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखती है। सिर्फ 10 मिनट के चार्ज पर ये ट्रेन 25 किलोमीटर का फासला तय करेगी। मंसूबे का बाज़ाब्ता एक्सपो अगस्त 2025 में लाहौर में मुनक्किद होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ट्रांजिट सिस्टम का मुआयना करेंगी। लाहौर में SRT का आगाज शहरियों के लिए एक महफूज, तेज रफ्तार और माहौल दोस्त सफर को मुमकिन बनाएगा, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इनकलाबी तब्दीली की बुनियाद बनेगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। बात करेंगे महंगाई की, तो महंगाई माफिया बेलगाम। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में करेले 240, फूल गोभी 220 और अरवी 200 रुपये फी किलो में फरोख्त। सेब 650, आड़ू 380, आम सिंदड़ी 320, गरमा 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। महंगाई माफिया बेलगाम। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। मार्केट में करेले 240, फूल गोभी 220, अरवी 200 रुपये फी किलो में फरोख्त। सेब 650, आड़ू 380, आम सिंदड़ी 320, गरमा 200 रुपये फी किलो में दस्तयाब। महंगाई माफिया बेलगाम। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर। मार्केट में करेले 240, फूल गोभी 220, अरवी 200 रुपये फी किलो में फरोख्त हो रही है। सेब 650, आड़ू 380, आम सिंदड़ी 320, गरमा फी किलो में दस्तयाब।
में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। खातून और उसका शीरखार बच्चा जा भग। ट्रक ड्राइवर जो फरार हो गया। पुलिस ने कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया। लवाहिकीन ने ट्रक ड्राइवर को कड़ी सजा देने का मुतालबा कर दिया। देखते हैं जैन अली की रिपोर्ट। शाहदरा में ट्रक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को कुचल डाला। 22 साला इरम और उसका 7 माह का बेटा अजलान जाँ बहक। हादसे में खातून का शोहर अदनान और 4 साला बेटा अफान शदीद जख्मी हो गए। शाहदरा नाके पर पुलिस ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक बेकाबू होकर मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। हादसे के बाद ड्राइवर रावी पुल पर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मुतासरा फैमिली के घर में सफ़े मातम बिछ गई। जख्मी अदनान के वालिद शहजाद अदरीस का कहना है कि हुकूमत से अपील है कि ट्रक ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अदनान के दोस्तों ने कहा कि आए रोज ट्रक ड्राइवर्स की गफलत के बायस हादसात रूनुमा होते हैं। हुकूमत को इस हवाले से सख्त पॉलिसी बनानी चाहिए। मुझे अपील है कि इनको छोड़ा न जाए, इसको सजा कर भी सजा दी जाए। 7 माह का फूल का बच्चा, मेरा फूल जैसा बच्चा मेरा इसने मार दिया, उसकी माँ मार दी, हमारा घर उजड़ गया। इंसाफ दिया जाए और इस ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पता नहीं वो किस हालत में था, किस हालत में नहीं। जो उसको पुलिस वालों ने रोका वो रुका नहीं, उसने और स्पीड कर दी। रात भी जो हादसा हुआ 12 पुलिस वालों के बीच में से वो ट्रक ड्राइवर भाग गया, उसको वो पुलिस वाले नहीं पकड़ सके। पुलिस ने कंडक्टर को गिरफ्तार करके ट्रक अपनी तहवील में ले लिया है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। इंसानी जानों से खेलने वाले ट्रांसपोर्टर्स के गिर्द घेरा तंग। एलपीजी बतौर ईंधन इस्तेमाल करने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। ठोकर न्याज बेग पर खुफिया अड्डे से मुतादिद गैस सिलेंडर वाली गाड़ियां पकड़ी गईं। देखते हैं जैनुल आबदीन की रिपोर्ट। का ठोकर न्याज बेग पर वाक़या खुफिया अड्डे पर छापा। एलपीजी के सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली मुतअद्दिद गाड़ियां कब्जे में ले ली। आरटीए टीम ने कानून की खिलाफ वर्जी पर कई ड्राइवर्स को गिरफ्तार करा दिया। अथॉरिटी ने वाजे किया है कि इंसानी जानों से खेलने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेगी। पंजाब भर में 2 हफ्तों के दौरान एलपीजी इस्तेमाल करने वाली 1724 गाड़ियों के चालान, एलपीजी इस्तेमाल करने वाली 1408 गाड़ियां थानों में बंद, 1237 सिलेंडर जब्त। गाड़ियों में एलपीजी के इस्तेमाल पर 517 मुकदमात दर्ज। ड्राइवर्स गिरफ्तार। खिलाफ वर्जियों पर 33,92,500 रुपए के जुर्माने आयद। ट्रांसपोर्ट में एलपीजी के इस्तेमाल पर सबसे ज्यादा लाहौर में 400 मुकदमात दर्ज। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसिन के मुताबिक पब्लिक सेफ्टी के खिलाफ काम करने वाले ट्रांसपोर्टर से सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। गैर मेयारी सिलेंडर्स, गैर कानूनी दुकानें, एलपीजी के मसले का क्या हल निकाला जाए। स्टेक होल्डर्स सर जोड़कर बैठ गए। डायरेक्टर सिविल डिफेंस बेगम नवाज ने कमेटी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी 9 मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल है, जिसके कन्वेनियर डायरेक्टर सिविल डिफेंस होंगे। कमेटी के अरकान में डिप्टी कमिश्नर होम, डिप्टी कमिश्नर जॉइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ओगरा शामिल। एलपीजी मार्केटिंग कंपनियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सिलेंडर मैन्युफैक्चरर्स और ट्रांसपोर्टर्स और सार्फिन के नुमाइंदे भी कमेटी में शामिल हैं। कमेटी एलपीजी गैस के गैर महफूज रीफिलिंग के रोकथाम के लिए हिकमत अमली मुरतब करेगी। 9 मई के मुकदमे में मियां महमूद रशीद की जमानत का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरखास्त जमानत वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने साबिक सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी पर समाअत की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 9 मई वाक़यात से मियां महमूद रशीद का कोई ताल्लुक नहीं। पुलिस ने मियां महमूद रशीद को मुकदमे में सियासी बुनियादों पर नामजद किया है। वकील ने नुक्ता उठाया कि गिरफ्तारी के दौरान मुलजिम से किसी किस्म की रिकवरी नहीं हुई। दरखास्त में इस्तदा की गई थी कि अदालत मियां महमूद रशीद की जमानत मंजूर करे। प्रोसिक्यूटर ने दरखास्त जमानत की मुखालफत की, जिसके बाद अदालत ने दरखास्त जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। जिनाह अस्पताल की इमरजेंसी में रश कम करने के लिए बड़ा फैसला। सरकारी अस्पताल की इंतजामिया ने विजिटिंग कार्ड जारी करना शुरू कर दिए। 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट पॉलिसी के तहत मरीजों के लवाहिकीन को विजिटिंग कार्ड मिलेंगे। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। रश कम करने के लिए जिनाह अस्पताल इंतजामिया का इकदाम। अस्पताल की इमरजेंसी में आने वालों को विजिटिंग कार्ड जारी करना शुरू कर दिया गया। 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट पॉलिसी के तहत मरीजों के लवाहिकीन को विजिटिंग कार्ड मिलेंगे। विजिटिंग कार्ड के हसूल के बाद लवाहिकीन मरीज की तीमारदारी कर सकेंगे। अस्पताल से जाते हुए विजिटिंग कार्ड वापस करके जाना पड़ेगा। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम का कहना है कि जिनाह अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों के साथ लवाहिकीन के रश को कम करने के लिए इकदाम किए गए हैं। रश कम होने से
अस्पताल की इमरजेंसी में मरीजों का बेहतर इलाज हो सकेगा। वन पेशेंट वन अटेंडेंट पॉलिसी मरीजों की बेहतरी के लिए है। जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी में अद्वियात समेत तमाम सहूलियात मौजूद हैं। मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रोफेसर तैयबा वसीम का मजीद कहना है कि मरीजों को अद्वियात समेत तमाम तिब्बी सहूलियात वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक बर वक्त फराहम की जा रही हैं। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़।